Hello all. In this lecture we are going to study about mail merge. Let's understand first what is the meaning of mail merge. Mail merge in Word is a function with the help of which you can send an email, letters, pre-addressed envelopes. What do you mean by pre-addressed envelopes? Means addressed already having the address imprinted over it. Okay, so you need not to write the address, there is already printed address over it. Or mailing labels for mass mailing. What do you mean by mass mailing? Mass mailing means you are sending letters to more than one person at a time. So this is a short description of mail merge. Now in mail merge you require two things. First one is your content, which can be an email, letter, pre-addressed envelopes or mailing labels, and second thing is yours, that the table or the data or the address or the fields to whom you want to send your email, letters, pre-addressed envelopes or mailing labels. Okay, so in short you can say you require two things. First one is your letter and second one is yours content, means data content which is to be imprinted over the email, letters, pre-addressed envelopes, mailing labels. So from where you can get that data? You can create that data in form of spreadsheet, database and table. Spreadsheet you will get in MS Excel, database you get in MS Access, and table you get in MS Word. So one by one we are going to do the mail merge from spreadsheet, database and table. In this video lecture I am going to tell you how to create a mail merge through spreadsheet. Okay, so let's start. First of all, for this आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी है जिसपे आप मेल मर्ज का काम करेंगे. ओके, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन न्यू फाइल, this one, and you will get a document over here. So I am just saving this particular file. You can also save it. I am saving this with the file name as mail merge. Okay, so let's start. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है मेलिंग्स पे. दिस इज द वेरी फर्स्ट. गो टू द मेलिंग, click on the start mail merge, then click on the step by step mail merge wizard. I am repeating these steps. सबसे पहले आपको मेलिंग में जाना है, then start mail merge, then step by step mail merge wizard. Click on this. After clicking on this you will get these steps on your right of the screen. Mail merge, select document type. What type of document are you working on? See, जो मैंने आपको बताए थे मेल मर्ज की डेफिनेशन में कि आपको क्या होता है, तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेटर सेंड करने के लिए होता है, एंड देन यू कैन इनकॉर्पोरेट अ पर्टिकुलर लेटर, जिसके लिए आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स एंड डायरेक्टरी. लेबल्स आपने ध्यान दिया होगा, वेन एवर वी यूज टू स्टेंड अ पर्टिकुलर इन्विटेशन टू समवन वी यूज स्टिकर्स ऑल्सो. तो स्टिकर्स के ऊपर कई बार आपके एड्रेस सारे प्रिंट होते हैं, तो दीज आर दी लेबल्स, तो वो भी क्रिएट आप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर दिस क्लिक ऑन दी this blue content in which it is written next starting document. Okay, so this one is your step 1 of 6, so I am writing here. So now first thing, how do you want to set up your letter? इसमें आपके पास तीन ऑप्शन होंगे. सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, मीन्स जो आपकी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट है आप उसको यूज़ करेंगे. दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट में लेटर्स होंगे. ओके, देखिए आप यहाँ न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, आपके पास लेटर्स आएंगे. तो लेटर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास नंबर ऑफ़ लेटर्स आ जाएंगे. ओके, अब यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं. आप इन कैटेगरीज़ में, जैसे कि मैंने इवेंट को सिलेक्ट किया है, ओके, तो इवेंट से रिलेटेड लेटर्स आ जाएंगे. फाइन. सो यहाँ से भी आप लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, या तो आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो दिस वन इज़ द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज़ योर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट?
एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग है आपने ऑलरेडी लेटर टाइप करके अपनी कंप्यूटर ड्राइव में सेव किया हुआ है और आप उस लेटर को यूज़ करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पाथ पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो नाउ this one is my current document, तो I have to write the content over here because template में तो आपके पास already content लिखा हुआ एक template है। existing document में आपने already type किया हुआ document है आपके पास, but in this case you don't have anything, तो you have to type this. So I'm just trying कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में आपके स्कूल कॉलेजेस बंद है एंड ड्यू का भी नोटिफिकेशन आया है दैट दी फॉर सेकेंड ईयर and third year the college is starting from 1st of August and for the new admission students the college is starting from 1st of September. okay, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे अगर सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पास ऑन करनी है तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट एन मेल टू देम. ओके, सो हेयर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ as per the direction by the government the session of अब मैं यहाँ पे डेटा चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट ईयर इनकॉर्पोरेट हो, ठीक है, या फिर आप उसको लिखना चाहते हैं तो इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ. दी सेशन, आपका सेशन क्या है? एज पर दी डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट दी सेशन ऑफ दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August 2020 full stop then and the सेशन फॉर जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने यहाँ पे छोड़ दी है. एंड दी सेशन फॉर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/9/2020. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग मच. आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल होगा या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपको अपना जो लेटर है उसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको अपना लेटर ड्राफ्ट करना होगा. आई एम जस्ट यूजिंग हेयर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आप उसको मेल मर्ज को यूज़ कैसे करेंगे. ओके राइट, सो दिस इज़ डन. अब मैं चाहती हूँ, अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन इसमें चेंज होगी वो मुझे फिल नहीं करनी है. फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ हर किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास जाए, राइट. तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डालूँगी, पेरेंट्स का नेम, एड्रेस और उनकी इन्फॉर्मेशन. या फिर अगर मैं चाहती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे स्टूडेंट्स के पास जाए तो फिर मैं वो स्टूडेंट्स के सारी डिटेल्स डालूँगी इसमें, ठीक है. तो वो आप जो इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहेंगी वो आप इसमें नहीं डालेंगे एंड जो इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं होंगी वो इसमें डालेंगे. फॉर एग्जांपल ये लेटर अगर आपका मान लीजिए कॉलेज की तरफ से जा रहा है तो कॉलेज का नेम तो चेंज नहीं होगा, वो सबके लिए सेम रहेगा. सो हियर आई एम राइटिंग द कॉलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम XYZ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. देन इसके बाद आ जाएगा आपका दिल्ली. ओके, इन सबको मैंने राइट अलाइन कर दिया है. आप इसको राइट अलाइन कंट्रोल करके फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर आपको लग रहा है इनके गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए. देन देयर इज़ अ पैराग्राफ ऑप्शन. पैराग्राफ ऑप्शन पे ये देखिए लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल है, आप इसको सिंगल कर दीजिए एंड दिस आफ्टर ऑल्सो रिड्यूस टू 0. सी नाउ द स्पेस हैज़ बीन फिनिश्ड. सो नाउ हेयर आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ये हमारा लेटर है, ठीक है. अब नाउ काइंडली रिवर्ट नहीं या फिर काइंडली पास this information to
योर वार्ड। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो आपका कोविड से रिलेटेड लेटर हो गया, ड्राफ्ट स्मॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेटर मान लीजिए हो गया, तो आपका टू भी चेंज नहीं होगा बिगनिंग में। अगर आपका टू आता है, टू भी सेम रहेगा, तो हमने टू को भी नहीं रिमूव किया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। इसमें हम इसको सब्जेक्ट दे देते हैं, दिस वन इज योर सब्जेक्ट, एडमिशन ड्यूरिंग COVID-19 of session 2020 and 2021, right? So this is done. Now we all set to start with our question. अब हमने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, और इनको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लेटर को खुद से टाइप करना होगा, राइट? सो दिस इज़ ऑल। अगर आप चाहें तो डेट का भी आइकन डाल सकते हैं, क्योंकि डेट भी आपकी चेंज नहीं होगी। इन केस आपको लगता है कि नहीं, डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, सो जैसा आपको ठीक लगे आप इसको वैसे कर सकते हैं। नाउ वी आर डन विद आवर लेटर। नाउ वी आर यूजिंग द करेंट डॉक्यूमेंट, दिस वन इज़ योर करेंट डॉक्यूमेंट। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इस लेटर को आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सो सेव करने का ये बेनिफिट रहेगा कि आपका सेव एज करना है आपको, इसके प्लेस में मैंने ई ड्राइव में सेव कर रही हूँ, आप अपना चाहे कहीं भी सेव कर सकते हैं। आई एम सेविंग इट विद द नेम मेल मर्ज मेन लेटर, मीन्स ये वाला आपका मेन लेटर है जो आप यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ये फर्स्ट फाइल है जो आपने सेव की है। सो दिस इज़ ऑल। अब नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। अब नाउ सी, अब आपके पास यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम एन आउटलुक कॉन्टैक्ट्स है, एंड टाइप एन न्यू लिस्ट है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास, जिसमें से आप अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। हमने अभी लिस्ट कोई नहीं सेव की है, तो इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। तो हम यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे आएंगे, आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। ओके, ये जो क्रिएट आप करेंगे, ये MS एक्सेस की फाइल आपकी बनेगी, बाय डिफ़ॉल्ट के माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी, अगर आप इसका पार्ट डेजिग्नेट नहीं करते हैं। आई एम राइटिंग हेयर द डिटेल्स ऑफ ओनली 4 स्टूडेंट्स। ओके, आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, लाइक टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम, दिस। नेक्स्ट, अब इसके बाद न्यू एंट्री के लिए ये है, डिलीट एंट्री के लिए आपका ये कॉलम है, फाइंड के लिए अगर आपको कोई लेटर में मान लीजिए आपने नाम किसी का गलत लिख दिया या कुछ, या किसी पर्टिकुलर प्लेस के पर्सन को आपको सर्च करना है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। और कस्टमाइज कॉलम में है कि अगर आपको इनमें से किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो वो नहीं है, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं, राइट? ऐड भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने को ऐड करना है, तो मेरे को नई फील्ड चाहिए, तो मैंने किया है ईयर। ओके, ईयर फील्ड हो गई। इनका सीक्वेंस भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, मूव अप एंड मूव डाउन, ठीक है। मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ईयर। कंपनी नेम की जगह मुझे चाहिए कॉलेज नेम, या फिर स्टूडेंट है, नीचे कॉलेज का नेम तो मेंशन ही है, तो 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कंपनी नेम की जगह चाहिए एड्रेस, या कंपनी नेम में आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी कंपनी का नेम भी हो सकता है। तो कंपनी नेम की जगह मैं चाहती हूँ कि इनका हो जाए, अगर पेरेंट्स का डेजिग्नेशन पता है तो आप डेजिग्नेशन डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो ये बस मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, how to rename a particular column, how to move up a particular column, and how to move down a particular column,
राइट तो इसमें से मैं उन फील्ड्स को मूव अप कर रही हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे कॉलम को ड्रैग ऑन ना करना पड़े. टाइटल आई नीड, फर्स्ट नेम आई नीड, लास्ट नेम आई नीड, ईयर आई नीड. देन इसमें मेरे को स्टूडेंट नेम भी चाहिए. रीनेम, नो आई डोंट वांट टू रीनेम दिस, आई वांट टू ऐड सम कॉलम. रूम नेम में चाहिए मुझे स्टूडेंट नेम. ओके सो मैंने आपका स्टूडेंट नेम भी ऐड कर दिया. तो ये चीज़ें ये मुझे चाहिए, राइट इसी सीक्वेंस में. तो आई हैव जस्ट क्लिक्ड ओके. नाउ सी यहाँ पे ईयर और स्टूडेंट नेम ऐड ऑन हो गया. नाउ आई एम एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ 3 पेरेंट्स ओनली. सो आई एम फर्स्ट मिस्टर, फर्स्ट नेम मान लीजिए पेरेंट का है राजेश कुमार. ओके देन राजेश कुमार, इनका जो स्टूडेंट है बेबी चाइल्ड है वो ही इज़ इन और शी इज़ इन फर्स्ट ईयर. तो आई एम मेंशनिंग हियर. देन स्टूडेंट नेम, राजेश कुमार के जो बेटे का या बेटी का जो भी आपको नेम देना है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल डिम्पल. ओके नाउ डेजिग्नेशन ऑफ द पेरेंट, अगर आपको पता है तो आप एंटर कीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको छोड़ सकते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग दैट ही इज़ अ डॉक्टर. ओके नाउ एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन में आप स्टेट डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डालते हैं वेस्ट दिल्ली. देन सेकंड में हम डाल रहे हैं दिल्ली. ओके सिटी नहीं डालना, स्टेट नहीं डालना, जिप कोड, होम, फ़ोन नंबर, ईमेल, नथिंग. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन मिसेस शिखा. लास्ट नेम रख रही हूँ मैं इनका, लास्ट नेम आप इनका स्किप भी कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसको यूज़ करें. देन सेकेंड ईयर. देन नेम ऑफ द स्टूडेंट साहिल. देन डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को आप ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू. ओके तो डेजिग्नेशन में मैंने एज एन ऐसा नहीं लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है नॉन, मैंने उनका डायरेक्टली ऑक्यूपेशन लिख दिया है. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ ही लिव्स इन, फॉर एग्जांपल इन जयपुर. तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका राजस्थान. राइट नाउ वन एंड द लास्ट एंट्री. मिस्टर then Mr. Irfan Khan, third year. then student का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, रज़ा. एंड डेजिग्नेशन में आप मान लीजिए कोई भी आपको डेजिग्नेशन जो भी सूट करे, साइंटिस्ट. राइट सो आई हैव डन विद द एंट्री. अगर आपको लगता है कि किसी की एंट्री गलत है आप उसको डिलीट कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन दी ओके. यू विल गेट अ डेजिग्नेशन कहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है. अगर आप ये नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में जाएगा. आई एम टेकिंग अ प्लेस लोकल ड्राइव ई और इसका मैंने नेम रखा है एड्रेस फील्ड. ओके एड्रेस फील्ड आपने रख लिया. नाउ सेव. सो यू आर डन. अब ये देखिए सेव होने के बाद आपकी टेबल ऐसे आएगी आपके पास. दिस वन इज़ योर डेटा सोर्स. डेटा सोर्स को अगर आपको लगता है एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे. सी यहाँ से आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं. कस्टमाइज कॉलम पे करने के लिए आपको अपना डिस्कार्ड करना पड़ेगा. देन ओके. अब यहाँ पे डेजिग्नेशन को मेरे को मान लीजिए रीनेम करना है तो ऑक्यूपेशन. ओके ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ये जानबूझ के लिखी हैं कि आप उसको चेंज कर सकें, आपको समझ में आए कि
गलतियाँ कहाँ आप कर सकते हैं और उन गलतियों को आपको करेक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया आपने यहाँ डेजिग्नेशन यूज़ किया है इन केस, तो आप उसको दोबारा ऑक्यूपेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये आप स्टेप फॉलो करेंगे, आपका हो जाएगा डन। अब देखिए यहाँ से आकर के एडिट किया और फिर आपने चेंज कर लिया। सॉर्ट करना है आपको। सॉर्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स हैं जो वो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आए असेंडिंग, तो वो सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली, तो दिस यू कैन डू। फ़िल्टर आप कर सकते हैं, फ़िल्टर में आपके जो भी हैं इंफॉर्मेशन वो फ़िल्टर हो जाएगी। डुप्लीकेट, अगर सेम नेम से वो नेम है और आपका है तो वो क्वेरी हो जाएगा। तो दीज आर दी फंक्शन विच यू कैन डू। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग क्रिएट लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे सेव करने के बाद ही आपकी फ़ाइल का नेम आ जाएगा। ओके, जैसे मेरी फ़ाइल का नेम यहाँ पे देखिए, अगर आपको विजिबल है तो यहाँ पे आ रहा है एड्रेस। ओके, स्पेस इतना ही है इसलिए यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, अदरवाइज़ आपकी पूरी फ़ाइल का नेम आता। और मैं आपको फ़ाइल बता दूँ, ये देखिए यहाँ सेव हुई है, मैंने यहाँ सेव की है आपकी एड्रेस फील्ड। ओके, और एड्रेस फील्ड में देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में ही सेव हुई है, जैसा मैंने आपको बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर आर नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आप इस लिस्ट को, आपको लगता है कि आपने गलत लिस्ट ले ली है, आपका एड्रेस कुछ और है और आपने फाइल किसी और नेम से सेव की थी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट कहेंगे वो आपसे दोबारा पाथ पूछेगा। ओके ना, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल माई डॉक्यूमेंट ये में सेव होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट किया, सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स में माई डेटा सोर्स ओपन हुआ। अगर आप पाथ नहीं देंगे तो आपकी फ़ाइल इसी एरिया में सेव होगी। तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो मेल मर्ज का क्वेश्चन करते हैं उनकी जो फील्ड होती है वो डेटा सोर्स में जाके सेव हो जाती है और वो उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। वो अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सर्च करते रहते हैं, बट द फाइल इज़ इन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर डेटा सोर्स। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ सेव कर रहे हैं। और इन केस आपको ट्रेस करना नहीं आ रहा है तो आपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लिक ऑन सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, आपका ये पाथ आ जाएगा। फिर आप वहाँ से माई डॉक्यूमेंट सोर्स से वो पाथ करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ एडिट रेसिपेंट लिस्ट। अगेन अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, किसी को ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। जिन जिन को अनचेक करेंगे वो नेम नहीं आएंगे। वो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए आपके पास डेटा है 200 स्टूडेंट्स का, लेकिन आपको डेटा सिर्फ करंट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को देना है, एक्स स्टूडेंट्स को नहीं देना है। और जो 200 का आपके पास स्टूडेंट्स डेटा है उसमें एक्स स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, तो आप वहाँ से फिल्टर करके एक्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके अनचेक कर सकते हैं और सिर्फ आप करेंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ विद दी यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। नाउ नेक्स्ट राइट योर लेटर। हमने लेटर लिख लिया है, बट ये राइट योर लेटर का मीनिंग ये नहीं है कि आप लेटर टाइप करें, इसका मीनिंग ये है कि आप ये फंक्शंस यूज़ करें। राइट, सो नाउ हियर आई एम यूजिंग 1 by 1 फंक्शन। पहला है आपका एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक में आपके कुछ पर्टिकुलर्स ऑलरेडी सेव्ड होते हैं एंड हेयर यू गेट दी आउटपुट कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो किस वे में आपके पास आए, आपको इंसर्ट करना है या नहीं करना है, नेम एंड ऑल। तो इस केस में जैसे यहाँ पे देखिए राजेश कुमार वेस्ट दिल्ली एंड दिल्ली है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फर्स्ट नेम है तो इनका सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। देन फुल नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम दोनों हैं तो वो आएगा। किसी का मिडल नेम भी होता है तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। देन अगर आपने मिस्टर, मैंने टाइटल में मिस्टर यूज़ किया था तो यहाँ देखिए मिस्टर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं लास्ट नेम पहले आए और सेकेंड नेम बाद में आए तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है और आप, मगर आपका डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ सिंगल मिस्टर राजेश का नेम ऐड किया है, अगर उसके साइड कॉलम में आप ऐड करते हैं स्पाउस नेम तो आपका मिस्टर एंड मिसेस जोश रैंडल के वे में आपका आउटपुट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंसर्ट कंपनी नेम। कंपनी नेम है नहीं इसलिए ये अनचेक आ रहा है, अगर आपने कंपनी नेम डाला होगा तो ये आपका हाईलाइट होगा। नेक्स्ट इंसर्ट पोस्टल एड्रेस। अगर आपने इसको अनचेक किया तो ठीक है, अदरवाइज जैसे ही आप अनचेक करेंगे आपका एड्रेस हट जाएगा। सो आई नीड टू हैव पोस्टल एड्रेस, सो दिस वन इज क्लिक्ड। नेक्स्ट जैसे ही आपका ये डन होगा, आप जो इसमें से प्रीव्यू आपने सेलेक्ट किया है, आई जस्ट वांट कि
मिस्टर भी आए एंड उनका फर्स्ट नेम सेकंड नेम भी आए और एड्रेस भी प्रॉपर आए, तो मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट प्रीव्यू सेलेक्ट किया है, रेसिपिएंट्स नेम का फॉर्मेट। सो दिस इज़ ओके विद मी। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगी मेरा एड्रेस बार एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें मैं कहाँ चाहती हूँ, उसके लिए आपको अपने कर्सर को वहीं रखना है। ओके, तो मेरे को ये चीज़ें चाहिए 2 के जस्ट नीचे। तो मेरा कर्सर देखिए 2 के जस्ट नीचे ब्लिंक हो रहा है, राइट। नाउ आई विल गो हेयर एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो सी एड्रेस ब्लॉक इज कमिंग हेयर। आपका ये जो एड्रेस ब्लॉक है ये आप टाइप नहीं करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही आपका एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ योर ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन में क्या है, डियर मिस्टर कुमार, जो आप सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखते हैं। जैसे अगर आपको प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखना है या फिर किसी टीचर को लेटर लिखना होता है तो आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू विल गेट इन इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन। तो डियर मिस्टर रैंडल, देयर आर मैनी ऑप्शन, टू एंड नन, तो यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर और मैम, टू होम इट मे कंसर्न, ये लाइन आपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर देखी होगी, या फिर जब आपको NOC मिलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है। ओके, सो दिस वन इज़ योर आई वॉन्ट टू यूज़ डियर सर और मैम। तो अगेन ये चीज़ आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको कर्सर को वहीं रखना होगा। ओके, सो आई वॉन्ट कि जस्ट सब्जेक्ट के नीचे आए ग्रीटिंग लाइन मेरी, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन ग्रीटिंग लाइन, ये मेरे को सिलेक्टेड है, मुझको ये ठीक लगा यूज़ करने में डियर एंड ऑल, तो मैंने ये किया। तो अब ये देखिए, देन फर्स्ट सेकंड, बिकॉज जो आपका थर्ड नेम था उसमें आपके सर नेम नहीं है, तो यहाँ पे आपके 2 नेम आ रहे हैं। ओके, सो ओके किया मैंने, यहाँ पे आपकी ग्रीटिंग लाइन आ गई। नेक्स्ट वन इज़ योर मोर आइटम्स। अब मोर आइटम्स में क्या होता है, आपके पास ये सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को आपको जहाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपका कर्सर याद रखिए वहीं होना चाहिए। Now I am using the fields name as per the direction by the government. The session of the colleges is starting this. ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करके आपका पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। As per the direction by the government, the session of, यहाँ पे लिखना है मुझे 2nd and 3rd year. ओके, so I will go to the more items. Okay, then year, इंसर्ट, ईयर आ गया। ओके, तो जिसका लेटर जो है उसके अकॉर्डिंगली ईयर वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एंड द सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, द स्टार्टिंग इज फ्रॉम दिस। तो अब मेरे को इसको दोबारा से क्लोज करना होगा और यहाँ पे एंटर सेशन फॉर दिस फर्स्ट ईयर, एंड द सेशन फॉर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर मुझे मेंशन करना है। देन आई विल अगेन गो टू द मेन, यहाँ पे ईयर। ओके, देन इंसर्ट। कर्सर देखिए मेरा पीछे था तो ये नहीं आया अपनी जगह पे। आप इसको यहाँ से कट करके भी कर सकते हैं, कट करके वहाँ पे पेस्ट। एंड द सेशन फॉर इज, यहाँ पे चाहिए मुझे कर्सर, देन क्लिक ईयर, इंसर्ट। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ आई वांट कि आपके स्टूडेंट का नेम भी आए, तो काइंडली पास योर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर वार्ड। वार्ड के बाद मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट का नेम भी आ जाए। ओके, और वो जो स्टूडेंट का नेम है मैं चाहती हूँ वो ब्रैकेट में आए, तो ब्रैकेट लगा के सेंटर में, देन नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम आ गया। अब यहाँ स्टूडेंट नेम के बाद मैं चाहती हूँ क्लोज कि स्टूडेंट का एड्रेस भी आए, तो स्पेस। स्पेस आप तब देंगे जब आपको 2 फील्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए। तो आई एम जस्ट अगेन मोर आइटम्स, आई एम जस्ट राइटिंग द एड्रेस लाइन 1, देन स्पेस एड्रेस लाइन 2। ठीक है, अगर आपसे गलती से 2 बार इंसर्ट हो गया है तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसको क्लोज कीजिए। इसको ये आपका सेलेक्ट करने के बाद एक ही साथ हाईलाइटेड होगा, उसको डिलीट कर दीजिए बस। ओके, और स्पेस अगर मान लीजिए आपसे रह गया है कि आपने स्पेस नहीं दिया है तो पहले तो आप इसको डिलीट करेंगे। जैसे ही आप इसको डिलीट कर लेंगे
आपका कर्सर बीच में आ जाएगा एंड यू जस्ट प्रेस स्पेस। ओके, सो दिस इज डन। ओके, तो अब आप इस वाले लेटर को भी सेव करेंगे। ओके, सो नाउ कंट्रोल एस से बेटर है हम सेव एस करते, बिकॉज आई नीड टू सेव दिस लेटर अगेन ई ड्राइव। इस लेटर का नेम, पहला हमने मेल मर्ज मेन लेटर किया था, नाउ वी विल डू मेल मर्ज फील्ड लेटर। इसमें हमने फील्ड सारी इंसर्ट की हैं, तो इस लेटर का नेम हम रखेंगे field letter. Okay, this one is your second letter which you have said. Now after this what you will get? The field letter. Now next, इसके बाद आपको next press करना है। Okay, now click on next, preview letters. Now see, आपके पास जो डिटेल्स थी, 1 सेकेंड रेसिपिएंट, फर्स्ट रेसिपिएंट्स, सी देखिए यहाँ पे इरफान खान, मिस्कर खान, स्टूडेंट्स का नेम, योर वार्ड, रज़ा एंड ऑल। एड्रेस इसलिए नहीं आया है क्योंकि एड्रेस मैंने डिलीट कर दिया है। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपका डिलीट के बिना भी आएगा। और ये देखिए यहाँ पे स्पेस रह गया है, तो ईयर इज़ साथ में है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेशन, ये थर्ड ईयर में है तो यहाँ पे आपका थर्ड ईयर आ रहा है। सेकेंड देखिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर आपका 9 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका 9 आ रहा है, राइट। अगर आपका सेकेंड है तो सेकेंड ईयर आएगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर आएगा, देन सेकेंड। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं कि सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, ये आप ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हैं और उसमें ध्यान भी रख सकते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज़ कि आप जहाँ पे फील्ड्स यूज़ करेंगे वहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। ओके फाइन, सो दिस इज़, मैंने यहाँ पे दोनों जगह यूज़ किया, आपको दोनों जगह यूज़ नहीं करना है, मैंने बस समझाने के लिए यूज़ किया था। आप चाहें तो इसको एक जगह यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी फील्ड्स यूसेज जो आपने किए हैं। फाइन, अब आपको इसको क्या करना है, सो इन दिस केस, अब इन केस यू वांट टू एडिट समथिंग, आपको लगता है कि इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आ गई और वो मुझे एडिट करना है, तो यू कैन गो बैक टू दिस लाइक दिस। ओके, अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो देखिए एड्रेस ब्लॉक वाला दोबारा आ जाएगा आपके पास। अब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो सारे ईयर सेम आ रहे हैं, डेट सेम आ रही है, तो आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं कंटेंट कि एज पर द डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट द सेशन ऑफ, आपको लगता है कि ये सारा सेम है तो यहाँ पे लेटर इसको डिलीट करके एड्रेस ब्लॉक मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए सिर्फ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और यहाँ पर मुझे चाहिए फर्स्ट ईयर, तो इसको डिलीट किया आपने फर्स्ट ईयर। और आप चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो एड्रेस नेम है स्टूडेंट नेम, इसके बाद आपको फिर प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट करिए, यहाँ पे देखिए जो आपका कंटेंट आएगा ये मोर आइटम्स, मोर आइटम्स पे आप देखिए कि आपने इसमें क्या चीज़ें लिखी थी जो आपको यूज़ हो सकती हैं। आपने यहाँ पे ईयर, स्टूडेंट नेम के बाद आप ईयर दे सकते हैं, राइट। सो यू कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद क्लोज कीजिए, देन अब प्रीव्यू कीजिएगा। ओके, सी second and third year is starting from this and the session for first year is starting for his, kindly pass the information to your ward Raza third year. Okay, then second letter Dimple first year and then Sahil second year। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो इन्फॉर्मेशन जहाँ चाहिए वो वहाँ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास और इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ द लेटर फ्रॉम MS Excel। ओके, नाउ आफ्टर दिस कंप्लीट द मर्ज स्टेप करेंगे, देन प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल में से आप एडिट इंडिविजुअल करेंगे, यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, देन प्रिंट करेंगे, आपके सारे लेटर्स एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। सी दिस वन इज़ योर फर्स्ट लेटर,
this one is your second letter, and this one is your third letter. Okay, so after this you have to save this file, save as E ड्राइव. इसमें जो आप फाइल का नाम देंगे ये होगा आपका मर्ज्ड डॉक्यूमेंट. ओके, सो आप देखेंगे हमने 3 फाइल्स बनाई. फर्स्ट फाइल जो थी आपकी वो थी मेन लेटर, देन मेल मर्ज फील्ड लेटर, देन मर्ज डॉक्यूमेंट. तो ये आपको तीनों फाइल और प्लस ये एड्रेस फील्ड मेल मर्ज के क्वेश्चन में आपको सेव करके दिखाने होंगे. सो दिस इज ऑल फॉर मेल मर्ज लेटर. In next class we are going to start with mail merge in MS Word through spreadsheet. Bye for now. Take care.